भी ये क्या बनाया? मैजिक लैंड। ये हाँ, हाँ और मैजिक शो। मैं ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਰਥਰਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕੁਝ ਸਰਸਰਾਏ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣਾਂ ਕੁਝ ਕੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛਣਕ ਉੱਠੀ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਡੋਡੀ ਨੇ ਅੱਖ ਚਮਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੰਭ ਹਿੱਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਦ ਸੀ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇ ਜਦ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਸਨ, ਅੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਅਰਪੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਗੰਧਤ ਸਾਮਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਯੱਗ ਸੀ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। Countless contemporaries, yet myself and my I not contemporary. My birth without I is the omen of crime in a vessel of good deeds, is a moment of flesh imprisoned in flesh. And on each tongue of flesh, whenever a word forms, it commits suicide. That which gets saved from suicide is put on paper and is murdered. Those bullets from the rifle that wound me in Hanoi wound me again in Prague, and a stream of smoke swims in the wind, and my eye dies like an 8-month-old baby. Will any day my eye be my contemporary? Amrita Pritam began a conscious quest for her contemporary eye in her adolescent days. Through the various lanes and by-lanes that her creative life has taken her, her quest still continues. In this search for her contemporary self, she has quietly breached all boundaries of norms and jumped all socio-religious fences. Ever present through all circumstances is her romance with the unattainable. Akka Varis Shah, Amrita's poem on the partition, immediately established her as a poetess of great potential. From that point of time, Amrita did not look back. Her immense capacity for poetry, along with the physical beauty she possessed, put her on a crest. The many storms, social, religious, and emotional, she weathered calmly, sailing through them herself, although antagonistic and sometimes even violent waves were created around her. Amrita got married, became a mother, walked out of her marriage, fell in love, and carried on searching for her soulmate without ever lifting her pen away from paper. Her writings revealed silently
all her personal, intimate experiences, evoking turbulent reactions. People adored reading her poems, stories, essays, and personal reflections, and loved criticizing the way she chose to live. Amrita's journey from apparent physicality to pure spirituality in search of her contemporary self has gone through varied phases. She was alone, yet it never created loneliness in her life. Her rejection of all socio-religious rituals gave birth to a personal ritual of rhythm and harmony around the world she has created to dedicate to her own expression. Her confirmed nonconformist attitude towards life made many who met her hate her. Yet, for the very same reason, and for the vastness of her work, she has been adored by many more. Like a river, Amrita's life has flowed through the uneven terrain of problems and obstacles. Never has the water stagnated. It has flowed on till it reached the tranquil plains of realized understanding. रात उगलांदी पई ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਹਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ पर कोई अख तकदी नहीं न चौंकदी सिर्फ एक कुत्ते दी तरह संगली दे नाल बज्जी किसे वेले किसे दी कोई नज़म भौंकदी रात उगलांदी पई इमा इमा गल काया दी नहीं उस छाया दी है जो अंतर दा दीवा बाल के अखरां दी सेध विच तुरती अखरां नूं लभदी प्रणाम करदी लकीरां विच उतरदी ते उन्हां दी छाती विच तड़कदी अखर काया मुक्त हुंदे सदियां दी यात्रा करदे जी मैं उस कमरे की फोटोग्राफ साफ कर दूं? जरूर करो बेटा, एहतियात से मगर। बेटा
अम्मा जी की फोटो बहुत कीमती है, इनको ध्यान से करना, ठीक है? अच्छा, पर मम्मा ये अम्मा जी के साथ और किस किस की फोटो है? इन्हें तो मैं पहचानती हूँ, तो इंदिरा गांधी है। ये बाकी फोटोज किसकी हैं? ये अम्मा जी के कोई बाहर के दोस्त लगते हैं। ये पंजी हैं, ये डॉक्टर राधा कृष्णन हैं, ये कृष्ण मेनन जी हैं, ये तो पंडित जी हैं, ये नरसिम्हा राव जी। इनमें से बहुतों को तो मैं पहचानती ही नहीं। ये अम्मा जी किसी के साथ डांस कर रही हैं और ये उनके कोई आर्टिस्ट दोस्त लगते हैं। ये कुर्तलीन हैदर हैं, ये साहित्य अकादमी के चौधरी साहब, और ये तो हमारी पिक्चर्स हैं। ये साहिल लुधियानवी जी हैं। ये अम्मा जी की बहुत पुरानी फोटोग्राफ है, और ये बाबा जी और अम्मा जी की बहुत पुरानी फोटोग्राफ है। देखो, ये तो अम्मा जी की सब अवार्ड्स लेते हुए, डिलीट की उपाधि लेते हुए फोटोग्राफ्स हैं। इनको ध्यान से साफ करना बेटा। देखो प्यार से, हाँ हाँ, ऐसे। हाँ, शाबाश शाबाश बेटा। जी नमस्कार। कहिए कैसे हैं? मेहरबानी आपकी, आपका पत्र भी मिला था जी और आप अपनी पत्रिका का विशेषांक सोच रहे हैं। जी हाँ अच्छा तो लगा, जी। लेकिन कहना चाहती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए अमृता जी, मैं आपका समझिए बहुत पुराना पाठक हूँ, और ये मेरी संचित अभिलाषा रही है कि मैं विशेषांक आप पर लाता, और उस इरादे को पुख्ता किया है मुझे एक जो ख्वाब आया था उसने। अरे आपको ख्वाब आया? जी हाँ, कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और यहाँ हौज खास में आपका घर तलाश था, गलियों में घूम रहा हूँ, घर मुझे नहीं मिल पा रहा, बड़ी घबराहट हो रही है कि अचानक से मेरी नज़र पड़ती है कि आप घर के सामने खड़ी हुई हैं और आपके हाथ में आसामी शैली की एक डलिया है जो आपने रखी हुई है इस तरह, और लॉन में एक हरी चादर बिछी हुई है। अच्छा। जी हाँ, और आप उसमें से डलिया में से कुछ निकालती हैं और उस चादर पर बोती हैं। बड़ा दिलचस्प ख्वाब है। जी हाँ, तो मैं फाटक पर आके ठिठक जाता हूँ, थोड़ा ठिठका रहता हूँ कि लगता है कि आपको डिस्टर्ब करूँ या ना करूँ, ना जाने आप क्या कर रही हैं, कि अचानक से आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है। अच्छा। जी हाँ, और आप मुझे इशारे से बुलाती हैं। पास आने पर मैं क्या देखता हूँ कि आपने जो डलिया ले रखी है उसमें कुछ अक्षर हैं। अक्षर हैं डलिया में? जी हाँ, डलिया में अक्षर हैं, बेतरतीब आ बा सा इस तरह के। वो उन अक्षरों को आप निकालती हैं और उस हरी चादर पर बोती हैं। दिनेश जी, कागजों पर तो बोती हूँ, आपने चादर पर ये ख्वाब देख लिया? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रही हैं? आप कहती हैं मैं अक्षर बो रही हूँ। मेरी चादर पर नजर पड़ती है तो जो अक्षर आपने बो रखे हैं उनमें नीचे किल्ले फूटे हुए हैं, यानी अंकुरित हो गए। अंकुरित हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं आपसे पूछता हूँ अक्षर बो रही हैं आप? तो आप कहती हैं जी हाँ, मैंने अक्षर ही तो बोए हैं। ये देखिए मेरे जो बगीचे में आप देख रहे हैं, छोटे बड़े दरख्त ये सारे मैंने अक्षर ही बोए, ये सब अक्षर ही हैं। और मैं सच में जब आगे बढ़ के देखता हूँ जिज्ञासावश, तो बड़े दरख्तों के नीचे भी जो उनकी जड़ है, उस जड़ में अक्षर पड़े हुए, उन्हीं में से उनके किल्ले अंकुरित हुए, फूटे हुए हैं। भी आपने तो अक्षरों के पेड़ देख लिए और उनकी सुगंधी पा ली। अब मैं सोचती हूँ मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। आप जो चाहते हैं करें। शुक्रिया। कमलेश्वर जी, साहित्यिका से साधिका होती हुई अमृता प्रीतम जब वो कहती हैं इश्क की योग की एक राह भी तू, इश्क की दरगाह भी तू, कविताओं को लेके सूफी होती हुई अमृता के बारे में आप बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी जी कि उनका जो पूरा सफर है
जी हाँ। उनकी रचना का, जी हाँ। उनकी सोच का, जी हाँ। ये पूरा का पूरा सफर एक तरह से उनके अपने यानी आपूर्तिकरण का है। अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व की पूर्ति। ऐसे में मुझे लगता है कि ये सफर दैहिकता से शुरू हुआ, जी, फिजिकलिटी से, जी हाँ, लेकिन ये पहुंचा जाके स्पिरिचुअलिटी तक। जी हाँ, मतलब आपका मतलब इश्क का उदात्तीकरण। इश्क का उदात्तीकरण यानी वो आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक का मतलब धार्मिक बिल्कुल नहीं। हाँ जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि लोग इसे समुदाय या मतलब वो संप्रदाय से जोड़ लेते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये तमाम ये उदात्तीकरण बहुत ही मानवीय है। जी हाँ, और ये महान इसलिए है जी हाँ, कि उन्होंने एक पूरी सभ्यता को जिया है। जी हाँ, और सभ्यता को जीने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है जी हाँ, कि वो बिल्कुल अकेली भी रही है अपनी जिंदगी में। जी हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं और अपनी रचनाओं में जिन लोगों को पेश किया है ना, उनके माध्यम से वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुनिया को उन्होंने हासिल किया। अब्दुल जी, अमृता जी की 3 मशहूर कृतियाँ, एक थी अनीता, नागमणि और पिंजर। हाँ, तो अनीता, अलका और पूरो, ये 3 नायिकाएं आपको किस तरह से लगती हैं? मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी, मतलब अस्मिता के संदर्भ में। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अनीता, अलका और पूरो, जी हाँ, ये तीनों की तीनों नायिकाएं या महिलाएं कहें, जी हाँ, ये अपनी अस्मिता, जी हाँ, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में, जी हाँ, ये लगातार लगी हुई हैं और ये चाहती हैं कि किसी तरह से हम अपने व्यक्तित्व, अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी को हम हासिल करें और खुद इस जिंदगी में से उसे प्राप्त करें। जी हाँ, बेशक। मैं सोचता ये हूँ कि एक तरह से अगर देखा जाए तो एक इतनी पुरातन सभ्यता में से उस मानवीय अर्थ को और मानवीय पक्ष को निकालना, जी हाँ, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और ये अमृता जी ने किया जी। इसी के साथ साथ मुझे एक चीज और लगती है, जी हाँ, कि अमृता जी ने जहाँ अपने महिला पात्रों की आजादी, जी हाँ, और उनकी अस्मिता का सवाल उठाया है, जी हाँ, वहीं पर अपने दौर के पुरुष को भी पहचानने की कोशिश उन्होंने उसकी समग्रता में की है। जी हाँ, जैसे कि उनके एक नज्म है जी, बाप भाई दोस्त पे खावे, इसी लफ्ज़ का कोई रिश्ता नहीं जी, पर जदों तैनू और तक क्या सारे अखर बूढ़े हो गए। एक मैन परफेक्शन की बात है जो आप कह रहे हैं, आपका मतलब इसी से है ना? जी हाँ, यानी अपना पुरुष के साथ साथ परम पुरुष, जी, इसकी तलाश। उसके अलावा अगर आप दूसरी तरह से देखना चाहें, जी हाँ, तो निश्चित रूप से अमृता जी बहुत अकेली रही हैं, जी हाँ, लेकिन उनका अकेलापन किसी भी तरह से यानी उनके उस पूरी दुनिया के बड़प्पन और उसकी सघनता और उसकी चिंताएं, उसके दुख, उसकी परेशानियां, इस ये जो बहुत ही परेशान दुनिया है, इसके बीच में से उनका अकेलापन खुद एक तरह से बहुत बड़े यानी अनुभव के रूप में सामने आया। और ये अनुभव, जैसा कि आप जानते हैं कि अमृता जी ने अपने दौर को सौंपा, और ये दौर हमेशा उन्हें याद रखेगा। ऐतवारी खाना तैयार। अम्मा जी, वो धूप
कितनी भूख लगी है देखो तो। अलका नवराज आ गए? नहीं। फिर ऐसा कहकर मैं बच्चों को खाना खिला देंगे, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ। आ बेटा नूरी, कहनी तुम ही आ जा, आज तू बच्चे में शामिल। अम्मा जी। अच्छा बैठे थे। अम्मा जी। हाँ जी। ये सैलेड का डिजाइन तो बहुत अच्छा है, ये क्या है? बेटा अभी बताऊंगी ना तो समझ में नहीं आएगा, तो बड़ी हो जाएगी तो समझ लेगी। नहीं अभी बताओ। देखो ये इस तरह का दिखाई देना तो ये संन्यास का प्रतीक होता है, इसको ऐसे करते हैं तो ये गृहस्थ का प्रतीक बन जाता है। ये गृहस्थ प्रतीक ये सब क्या होता है? तभी तो मैं कह रही थी कि अभी नहीं पूछो, बड़ी हो जाओगी तो समझ में आएगा। अच्छा अब ऐसा करो, खाना खाओ। अच्छा। बेटे मेरी बेटा लो मेरी बेटा। अम्मू जी आपको क्या दूँ? ये वाला? जल्दी जल्दी खाओ भाई, फिर हम भी खाएंगे। लो बेटा। अम्मा जी खाना बहुत यम्मी है। अच्छा और चपाती दूँ? अम्मू अभी नहीं, अभी है। You know, friends, I started loving Amrita from my childhood days. Her stories used to publish in Assamese magazines. Her life was described and published in Assamese magazines, and I used to read those magazines. Moreover, her life was described in such a way that I think anybody would have felt impressed by her life and her works. For a long time after coming to Delhi, I did not meet her. I was a very shy person, though at heart I had great desire to meet her. But she came to our department once and I met her. I requested her to come to Assam, and once she did come to Assam. Her short stories were described as pearls studded in a necklace by Assamese scholars. Though she is a writer, but at heart she is a ascetic, she is almost like a sannyasi. Seeing her condition at the time, I wrote an Assamese poem. Teo ahisil. Hosakoe teo ahisil. She came, yes, she came. With me on Manas River in a boat together we sailed. She came like a yogini. I saw the saffron light on her skin. She asked, "Can you show me the monk of the Navagraha temple? Can you show me that monk?" She gave me a glass of wine to drink. How could I tell her how many times have I changed and thrown away my clothes? How many times have I peeled off my own skin to get a new one? Oh, how many times. On the mushroom sands of Brahmaputra, in the thorny forest of Mathura, in the ruined temple of Dwarka, I searched. Yes, I searched for that light. In the boat, she told me, "Have you seen those beautiful banks, those beautiful scenes? Listen, only see them, but remember, don't touch them with your two hands. In your heart, don't build a house with them." Does she know? With my own life's blood, I have chosen my own path, only because thinking those scenes on the banks to be true. On the sands of Brahmaputra, on the peaks of Nilachal, in the ruins of Tamreshwari, I searched for that monk. But again and again, my thoughts came back and struck Amrita's silky saffron skin.
ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੱਕਾ ਥੱਕਾ ਸਾਂ, ਬੋਝਲ ਬੋਝਲ। ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਠ ਲੱਠ ਬਲਦਾ ਸੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਹਾਂ। ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਪਿੰਨੀ ਪਿੰਨੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੱਗ ਦੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਫੀ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਾਏ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਰੱਬ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪਿੰਜਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਦੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਤੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਰਦਮੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Excuse me, sir. How do you evaluate the growth of Amrita Pritam as a writer? I think there is specific growth in Amrita's creativity. There are 3 phases. In the first phase, up to 47, she wrote love poetry and about the destiny of women in our society. And the major book was Pathar Gite.
In the second phase, that's up to 70, she was interested in romantic progressive movement, but she wrote love poetry also. And she created the best book, Sunede. She got Sahitya Academy Prize also on that book. And in 70 itself, she created her major book, Kagaz the Canvas. And that book is modernist book, but love poetry also there. But she was disillusioned, especially with Marxism. So we witness this kind of growth in her literature. Now, especially in fiction, she has become Orientalist because of Orientalist metaphysics in that literature. ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ कागज पे कैनवस तेरे लिए। मेरी खुशकिस्मती। थैंक यू। वाशु, ये पुस्तक आई है एक मुट्ठी अक्षर। वंडरफुल। जो कविताएं सपनों में लिखी या सपनों के आधार पर लिखी, अच्छा, उनका संग्रह ये आपके लिए। वंडरफुल, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज आपका ड्रीम पोएम्स का उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन तो हमेशा गणेश जी करते हैं, लेकिन आज अच्छा लगा। मेरी जिंदगी के दोस्त मेरे साथ हैं, आप आए, मेरे बचपन के दोस्त हैं अवतार। अच्छा अच्छा, ये भी आ जाए। तो आपका उद्घाटन तो हो गया, लीजिए लड्डू भाई। अमृता, तेरी किताब कागज़ ते कैनवस दी ओह नज़म माता त्रिता दे 9 सुपने, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं दुध दी नदी चो नहा के निकली चांदनी रात में। बाकी मैंने तो याद नहीं, पर एक सुपना, वो सुपना अंदर वासी गया। अमृता जी, आपका गले में लॉकेट तो मैंने कभी नहीं देखा। आज ये कुछ मजेदार लॉकेट पहनी हुई है आप। वाशु, सोना चांदी हीरे मोती तो मेरी दोस्त। चल। ये तो बुल्गारिया का अवार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यादगार के तौर पर कभी पहन लेती हूँ। श्रीमती अमृता प्रीतम was born at Gujranwala, now in Pakistan. She was educated at Khalsa School and a private college in Lahore. Winner of several awards, Shrimati Amrita Pritham was nominated to the Rajya Sabha in 1986. The list of awards and honors, both Indian and from faraway foreign lands, rolls on. अब तक प्रकाशित पुस्तकें 75 के लगभग। कुछ पुस्तकें संसार की 34 भाषाओं में अनुदित। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में, पद्मश्री उपाधि 1969 में, दिल्ली विश्वविद्यालय के डिलिट की उपाधि 1973 में, वस्ता सरोवर बुल्गारिया का पुरस्कार 1979 में, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, जबलपुर विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि 1983 में, विश्व भारती से डिलिट की उपाधि 1983 में, पंजाब विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि 1987 में, फ्रांस सरकार से उपाधि 1987 में, SNDT विश्वविद्यालय बम्बई से डिलिट की उपाधि 1989 में, पंजाबी मासिक नागमणि का संपादन 1966 से, यात्रा सोवियत संघ, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, मॉरिशस, इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। Amrita ji, how has been your journey of consciousness as a woman and as a writer? I have written a small book on the very subject, journey of consciousness, and I call it Hujre Ki Mitti. Hujra means the cave-like place, closed, where Sufi poets and saints used to meditate, and the mitti gets vibrated when they meditate. So Hujre Ki Mitti I have written, that is the part of my autobiography of new edition. And your journey of consciousness as a woman, how would you describe the milestone you have reached now?
There I have explained, there is a special one chapter on it, Yin Yang Chetna, male and female. Actually, when the man denies the power of woman, he is denying his own subconsciousness, because man's outer side is male. Yes. But the inner side, subconscious side, that is female. We had a very beautiful concept of Ardhanarishwar. The God is half man and half woman. That means when they combine, the whole human being is created. Amrita Pritam is not easy to classify. Amrita Pritam's work encompasses human sensibility in its most diverse situations and contexts. She is a person who is very well versed in some of the most esoteric kinds of knowledge, but she is able to articulate it, express it, convey it in a manner which is without the tensions of pedantic scholarship. अम्मा जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। वो कौन सी चीज है जो है तो आपकी, पर आपसे ज्यादा दूसरे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं? भी ये कैसे हो सकता है? मेरी है तो मेरी है, लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? यही तो सवाल है। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मेरी चीज है और लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो भाई हार गए। हार गए? हार गए। वो है आपका नाम। अरे अम्मा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं? तुम भी पूछो भाई। अम्मा जी, ऐसी कौन सी चीज होती है जो फल भी है, फूल भी है, मिठाई भी है? हाँ, समझ लिया। वो है अमान। नहीं। फल भी है, फूल भी है और मिठाई भी है। नहीं। हाँ। तो क्या है? हार गए? हार गए। अब बताओ, गुलाब, जामुन क्या होगा? गुलाब है, जामुन फल, और गुलाब जामुन मिठाई होती है। अरे कुछ मिठाई खिलाओ आज, मेरे हारने की मिठाई खिलाओ ना। तुम जीत गए, अपनी जीत की मिठाई खिलाओ। अम्मा जी, आपसे एक और पूछूं? हाँ, पूछो। एक जोक सुनाता हूँ। अच्छा, सुनाओ। एक बार एक चॉकलेट भगवान के पास आई, उसने कहा, भगवान जी मैं आपसे बहुत सारी शिकायतें लाया हूँ। भगवान ने कहा क्या? उसका जो भी मेरे को देखते हैं वो खा जाता है। अच्छा। कह रहे तुम ऐसे हो? अच्छा, और भगवान जी भी उसे खा लेते हैं। तो मैं भी खा लूं? हैं? मैं भी चॉकलेट खा लूं? माजा ये खाते हैं नीचे, इधर पढ़ ले। ये भी किचन रखाता मलोटता। आप कृपया मई 93 अंक से हमारी नागमणि की सप्लाई 10 कॉपी से बढ़ाकर 13 कॉपी कर दें, मेहरबानी हो। थैंक यू। सैटरडे? हाँ, करीब 5 बजे। मेहरबानी। नमस्कार। आपने पहचाना नहीं? आपने मेरे ऊपर एक किताब लिखी थी, कोई नहीं जानता। अरे बंसल साहब, मेरे उपन्यास के कुंवर चंदन सिंह, आइए आइए। इतने
बरसों के बाद कैसे याद किया बंसल जी? असल में मेरी बेटी की शादी है, उसका निमंत्रण देने आया हूँ मैं आपके लिए। कार्ड तो भेजा नहीं कि खुद ही हाजिर हुआ हूँ मैं, इसलिए। बंसल साहब ये मेरी बहू है, बहू माँ। बेटी की शादी का निमंत्रण देने तो आप आए, लेकिन अपनी शादी का तो दिया नहीं। सुना था आपने एक और शादी कर ली? जी हाँ, एक पहली पत्नी तो अलीगढ़ में ही है जी, दूसरी वाली बॉम्बे में है, और उनसे एक बच्चा भी है। जाहिर है कि बेटी की शादी पर कन्यादान होगा जी। तो पहली पत्नी भी कन्यादान करेगी और दूसरी भी? जी हाँ, दोनों करेंगे। और हमारी बेनू जी? बेनू जी को निमंत्रण तो भेजा है, शायद वो आएंगी जरूर जहाँ तक मैं समझता हूँ, और वो कन्यादान तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। अच्छा ये बताइए कि वो जो कहानी मैंने लिखी आपकी जिंदगी पर, जी, बेनू जी ने पढ़ी? जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने ही पढ़ी वो, और बहुत ही खुश हुई, और पढ़ने के बाद में तो कहने लगी कि अमृता जी ने तो मुझे अमर कर दिया है। और मैं भी कहता हूँ कि आपने लिखने के बाद में तो मुझे भी लगता है कि आपने हम सब लोगों के लिए अमर कर दिया है। मुझे तो बेनू जी याद आती हैं जिन्हें आप शंख चील कहा करते थे, और लगता है जी कि जीने वाले से भी ज्यादा जी लिखने वाले के लिए जी वो किरदार जिंदा हो जाते हैं। ये तो सही बात है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप शादी में आइए। हो सकता है कि वो किरदार अब वहाँ पर आए और आपकी मुलाकात कराऊँ उनसे मैं। सिकंदर जब हिंदुस्तान आया तो उसे एक दरवेश का दीदार हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा जो मांगो दे दूंगा, कुछ भी मांग लो। दरवेश ने एक नज़र सिकंदर को देखा, मुस्कुरा दिया। कहने लगा मुझे क्या दोगे? अभी तो खुद लेने की फिक्र में हो। बहुत बड़ा सिंहासन चाहिए, राजपाट चाहिए। अभी तो तुम्हारी अपनी झोली खाली है, मुझे क्या दोगे? सिकंदर ने फिर भी तकाजा किया तो दरवेश ने कहा अच्छा दे दो, इस जाड़े में धूप की ज़रूरत है, वो दे दो। तुम मेरे और सूरज के बीच में खड़े हो, ज़रा हटकर खड़े हो जाओ, मुझे धूप मिल जाएगी। रजनीश जी ये कहानी एक नए धरातल पर खड़ी कर देते हैं। कहते हैं तुम कभी भी किसी के और सूरज के बीच में मत आना। और उनकी आवाज़ सदियों की ओर संकेत करती हुई आज के हालात की ओर देखती है, और रजनीश एक सूफियाना अंदाज में हंस देते हैं। देखो, तुम जो अपने को बड़ी जाति का मानते हो, तुम दूसरी जाति वालों के सामने से हट जाओ। जिंदगी की धूप उन पर बरसना चाहती है, तुम बीच में क्यों खड़े हो? देखो, तुम जो अपने को पंडित मानते हो, अपने शास्त्र लेकर लोगों के सामने से क्यों खड़े हो? हट जाओ। परमात्मा की करुणा उन पर बरसना चाहती है, तुम बीच में क्यों आते हो? देखो, तुम जो अपने को नेता मानते हो, राजनीति के मंच पर शस्त्र लेकर क्यों खड़े हो? कुदरत का सौंदर्य लोगों की बस्तियों पर बरसना चाहता है, तुम बीच में क्यों खड़े हो? जरा एक तरफ हो जाओ तो उनका घर आंगन खिल जाएगा। और ये अमृता प्रीतम सुनो, मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैं एक नहीं थी, दो थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुंवारी को कत्ल करना था। मैंने कत्ल किया था। ये कत्ल
जो कानूनन जायज़ होते हैं, सिर्फ उनकी ज़िल्लत नाजायज़ होती है। मैंने उस ज़िल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून में भीगे अपने हाथ देखे थे, हाथ धोए थे, बिल्कुल उस तरह ज्यों और गंदले अंग धोने थे। पर जो ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो अपनी तरफ से मैंने रात कत्ल की थी। ओ खुदाया, क्या सेज का अंधेरा बहुत गाढ़ा था? मुझे किसे कत्ल करना था और किसे कत्ल कर बैठी। बहुत सुंदर। I have read her mostly in Hindi. No one can be translated from Indian languages to other languages as well as one can be translated from one Indian language to another Indian language. Dr. Radhakrishnan used to say, Indian literature is one, written in different languages. And you feel the truth of it as you read Amrita Pritam in Hindi. And she commands perhaps one of the largest readerships in Hindi. Yeah, that's true. Though she is not, most of the time she is not writing in Hindi. But she has, I think, that quintessential Indianness about her. And yet she is so universal. That's true. And this bridging of the quintessential Indianness and the quintessential universality is something which very few writers are able to achieve. आज तू ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਬਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। बुलाया? हाँ बेटा। मैं बूटे में पानी दे के आऊं। शैली बेटा, तेन एक गल कहनी। हाँ जी। पर याद रखना कि मेरे बाद कोई भी रिवायती गल ना करना जो लोग करते हैं। बस घर नूं शायरी नाल संगीत नाल भर देना। सूफी शायरां दा कलाम होवे, रजनीश दी आवाज़ होवे, बुद्ध, कृष्ण, नानक, मीरा, कबीर, इन्हां बारे जो भी रजनीश बोलते ने वो सुनना सुनाना। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਗਾਓ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? शैली बेटा, मेरा जी करता है कि मेरे बाद सोग ना मनाना, जश्न मनाना। मैं तुहाडे सारियां दे नाल हाँ, सारियां दे अंदर, कण कण विच, पत्ते पत्ते विच। तुसी उसनू जश्न मनाओ। मैं तुहाडे अंदर हाँ, सब दे नाल हाँ। अमृता जी, I'm so happy you come. Hello Ambrose. भी पता चला आज आपकी चित्रकला देखने को मिलेगी। मैं और अमरोज चले आए। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। तो दिखाइए, आइए देखिए मेरा लेजर देखिए। जी आप तो एग्जीबिशन देखने ही नहीं आती, बहुत ही कम दिखाई देते हैं। क्या देखने आऊं सतीश जी? चित्रकला में इतनी डिस्टॉर्शन हो गई और मुश्किल ये है कि उसे जस्टिफाई किए जा रहे हैं, उसे हाईलाइट किए जा रहे हैं।
याद आता है, एक बार किसी कलाकार से कहा गया जंग के दिनों के चित्र बनाने को। वो कहने लगे, चित्रकला तो बार बार देखने की चीज़ है। क्या कत्लो खून और वायलेंस याद रखने वाली बातें हैं, बार बार देखने वाली हैं। और चित्रकार ने इनकार कर दिया जंग के चित्र बनाने को और कुदरत की खूबसूरती को अपनी कैनवस पर उतारने लगे। अरे गुलजार, एक बार मैं गई लंदन में, तो वहाँ साहब की दरबार मिली रेडियो के दफ्तर BBC। तो कहने लगी, तू वो है ना जिसने वो नज़म लिखी थी अजाका बारिशाह? जी हाँ। कहती फिर तो तेरे से गले मिलना है। तो मुझे याद आया, आपने वो नज़म लिखी, रिश्तों को कोई नाम न दो, आपसे तो गले मिलना। कैसे? बस अच्छा। ये बस एक नई कोशिश, नई किताब। तो पढ़ सकती। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। हाँ। आप उर्दू पढ़ लेती हैं थोड़ी थोड़ी? बहुत थोड़ा थोड़ा। आपको मालूम है मैं जेहलम का हूँ। जी। शहर दीना की पैदाइश है मेरी, कुछ तो अच्छा। पाकिस्तानी। तो एक शेर कहा था कि जिक्र जेहलम का है, बात है दीने की, चांद पुखराज का रात पशमीने की। चांद पुखराज का रात पशमीने की। सो ये चांद पुखराज का नाम रखा, आधा मिसरा तो आ गया आपके पास। तो रात पशमीने की भी शायद अगली कोशिश है, तो इसलिए लेकर आया। बहुत खूबसूरत। कासमी साहब के साथी, कासमी साहब, अहमद अली कासमी, किताबें बहुत अच्छी है, नज़्में तो खैर। अब आप जैसी तो नहीं है, पर हम तो सीखते रहे आप लोगों से। देखो अभी तो नाम नहीं दे रहे थे, अभी मुकाबला करने लगे हो। नहीं, मुकाबला नहीं, तो सीखते रहे आपसे। मेरे से एक बार शिव जी का ब्याह होने लगा, तो पंडित पूछने लगी, भी तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उसने कहा विष्णु। उसने कहा विष्णु के बाप का नाम क्या है? उसने कहा ब्रह्मा। उसने कहा ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? कहता मैं शिव है उसका नाम। तो कौन किससे सीखता रहा है? नहीं, मैं अपने बस जैसे लिखना शुरू किया था उस जमाने में, हम आपकी तरफ देखा करते थे, अच्छी तशबीह, अच्छे इस्तारे के लिए, अच्छी शायरी के लिए। अच्छा, तो वो पहले और दूसरे बाप का नाम तो याद है, उससे आगे का नहीं। अंदर देखिए, कोई नज़म सुनाइए। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए, आंखों से मालूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। ये इन्फ्लुएंस है हम पर आपकी शायरी का, जहां अपनी सॉइल का जिक्र जरूर आया है, अपनी जमीन का। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पे मीठे गुड़ का जायका अभी तक चिपक रहा था। बहुत प्यारा। और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पे कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पे कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ। मैं सोचती हूँ आज के हालात पर ऐसी नज़म लिखना भयानक खूबसूरत नज़म। पता नहीं कब तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, लेकिन जिनके दरवाजे पर ख्वाब दस्तक देते हैं उनका क्या होगा? उसमें आप भी शामिल हैं। आपने तो ख्वाबों पर पूरी किताब लिखी है। हाँ, लिखी एक लाल धागे का रिश्ता, कि हम खिलाई कोख से तो अलग हो चुके,
लेकिन वो रिश्ता तो बना हुआ है, वहीं से जो ग्लिम्पसेस दिखाई देती है, उसको नाम दिया लाल धागे का रिश्ता। जो ख्वाबों पर नज़में कहीं आपने, वो उनकी ख्वाबों कलेक्शन में भी लिखी। अच्छा, जैसे कभी आधी नज़म ख्वाब में लिखी, आधी जाग कर लिखी, कभी पूरी पूरी नज़म लिखी, वो सब इकट्ठी की हैं एक मुट्ठी अक्षर। ये आपकी नज़र। शुक्रिया शुक्रिया। जिसके दरवाजे पर ख्वाब ने दस्तक दी हो। तो हमें कोई नज़म भी सुनाइए इसमें से, जो आपको पसंद है चुनिए। देखो ये नज़म तर्जमा मैंने खुद किया है। तो आप ओरिजिनल सुनाइए ना। बात तो तर्जमा मैं ले जाता हूँ, ओरिजिनल आप सुना लीजिए। वर्षकुंड ओ इच्छा सवार सी, ਉਹ ਸੱਤ ਕੋੜੇ ਪੀੜ ਲੀਤੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਰਸ਼ ਕੁੰਡ ਤੇ ਜਾਵੀਂ, ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਝਾੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਮਲੀ, ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਵੀਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਵੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਉਤਰੇਗੀ ਚੰਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ, ਤੇ ਵਰਸ਼ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕ ਉੱਠੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਲਕਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾ ਝਾੜਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਤ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜ਼ਲ ਨੇ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥ ਨੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਪਕੜ ਲਈ। ਰੱਥ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਨੀਲਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੰਬਰ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੰਭ ਗਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਤਵਾਈ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਬ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੂੰ ਵਰਸ਼ਕੁੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੇ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੇ ਵੀ ਸੁਝਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਏ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੀਕਣ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣਾ ਸੀ, ਸੁਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਦਰੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ। वाह। पर जिमें थे दी मिट्टी, इसका ट्रांसलेशन कैसे किया होगा आपने? हमें दिखाइए, किया तो मैंने ही है। लेकिन ये जो पंजाबी का रंग है उसका वो नहीं आता। जिमें अब जैसे चंद्री, जी हाँ, चंद्री, जिमें, हौका एक जगह आपने इस्तेमाल किया। हौका का तर्जमा तो मिलता ही, गहरा सांस कह लो, कुछ भी कह लो, वो बात नहीं आती, वो दर्द नहीं आता। जो लोग नहीं पंजाबी में आपको सुन पाए, नहीं पंजाबी जानते, तो कहीं कुछ तो मिस किया है। जेल में पास किया नहीं, उन्होंने कितने कुछ तो मिस किया है। इसमें एक नज़म मैंने तर्जमा की, मेरी खामोशी की गली से अक्षरों के साए गुजरते रहे, और रात की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे। वाह वाह। तो इसे ओरिजिनल पंजाबी में क्या याद है? ओरिजिनल पंजाबी में याद नहीं, लेकिन लंबी नज़म है। अच्छा। मैं नहीं कर पाई, सिर्फ एक को टुकड़ा करके छोड़ दिया। क्या करूं? शाह हुसैना सा कंगन पाए, शाह हुसैना सी जोगी होए, साडे सप्पा नाल याराने। मां
किन्ने भी ध्यान नाल प्रूफ वेखा ओहो गलती रह ही जाती है। ये तो छोटा जिहा परचा है नागमणी, रब दी किताब वेखी हो एडी वड्डी चंद सूरज दी जिल्द वाली ते इबारत वेखी हो गलतियां नाल भरी हो, वो तो खरे प्रूफ ही देखने भुल गया।